We responded to them in the language that the government, the terrorist attack understands. मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी इनके बैठने के क्या 2013 में स्थिति सुधरी? 2013 में पुनः सरकार बोलती है टेररिज्म की बात कहे तो आपको क्यों ऐसा हो रहा है? टेररिज्म के बाद जब हम बोलते हैं आपको क्या तकलीफ हो रहा है? धीरज दिखाइए, बैठिए, सुनिए और काफी चीज है, बैठिए। अब बैठ जाइए, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं। In the second part, the most important part of the Amrit Kal, the 2 decades that are the most important to lay the foundation for a Viksit Bharat. This speech of the Honorable President comes at a time when India today, despite the global economic slowdown, is the world's fastest growing large economy. It comes at a time when India has lifted 25 crore people out of poverty. It comes at a time when our people are given wings to their aspirations. It comes at a time when the youth of India, the Yuva Shakti, are being empowered to be the future torchbearers of this hoary, great civilization. Adhyaksh ji, in the last 12 years, the popularity and political capital of our government and our Prime Minister is on a constant increase. And 12 years is a very long time in a competitive democracy like ours. In the same 12 years, many other democracies have seen many leaders come and go. We have seen how in United States, in United Kingdom, in Japan, in Italy, in many countries where, like us, we have a thriving democracy, many leaders have come and gone. But it is to the testament of the Prime Minister's dedication, his delivery of governance, that not once, not twice, but consecutively 3rd time the Prime Minister has been re-elected to office with thumping majorities, and our popularity and political capital is only increasing. अध्यक्ष जी, मैं कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जब मैं पढ़ रहा था, स्वाभाविक तौर पर मुझे लगा कि पिछले 10 साल से पहले, क्योंकि पिछले 10 साल के अभिभाषण में हम सब भाग ले चुके हैं, यहाँ पिछले 5 साल में यहाँ बैठकर सुनने का मौका जनता ने मुझे दिए है। लंबी सफर पूरे देश पिछले 10 साल में हम किए हैं। स्वाभाविक रूप से मैं यूपीए की कालखंड के राष्ट्रपति के अभिभाषणों को मैं एक बार देख रहा था। To put into context the journey of development the country has done in the last 10 years, I went and read the 10 speeches of the Honorable President delivered during the 10 years of the UPA. और अध्यक्ष जी, मैं उन सभी भाषणों के एक 2 साल आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, because that will be a stark example, a reminder to the country of what was a lost decade of opportunity and what is today a decade of transformation under Narendra Modi. अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 10 साल में देश में हुआ है वो ये है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रपति जी के हर अभिभाषण में करप्शन के स्कैम्स के या स्कैंडल के एक उल्लेख का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटीग्रेबल गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years. दिस हैज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट. अध्यक्ष जी, मैं आपको 2011 का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं.
This is what the Honorable President said in her address. There has been a grievance in some quarters that the benefits intended for the poor through anti-poverty programs have not reached them in full measure. ये 2011 में बजट भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहे थे, करप्शन का सबसे बड़ा भोज, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब को होता था. And contrast it to today, when in 2026, Honorable President says in her address, my government is institutionalizing transparency and honesty in systems. In the last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. 2011 के यूपीए जमाने में राष्ट्रपति जी कहे, she has said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure. And here in 2026, the government has delivered 6.7 lakh crore rupees in direct benefit transfers in the account to the people of this country. Adhyaksh ji, the difference is unmistakable. The UPA government acknowledged failure in delivery. The Modi government has ensured delivery with dignity. What was once rhetoric has now become reform. What was once leakage is now replaced with direct benefit transfer. This is the stark example between UPA and today's era of good governance. Adhyaksh ji, the other most important aspect of contrast lies in how the earlier government handled the country's economy. Adhyaksh ji, what was the situation of the country's internal security? मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं यूपीए के राष्ट्रपति अभिभाषणों के वाक्यों का. इन 2010 यह कहा जाता है, infiltration of terrorists from across the line of control in Jammu and Kashmir has gone up. This is the acknowledgement in 2010. In 2011, did things change? Did the government do anything? In 2011, the government again says, certain parts of the country have suffered from unacceptable high levels of violence, especially areas affected by left-wing extremism and Kashmir Valley. 2012 में पुनः कहा जाता है, the bomb blast on July 13th, 2011 in Mumbai and September 11, 2011 in Delhi are a grim reminder that terrorist modules continue to be active in the country. In 2011, 18 terrorist modules were neutralized. Terrorism, fundamentalism, ethnic violence and left-wing extremism continue to pose major challenges. ये 2012 का है. क्या 2013 में स्थिति सुधरी? 2013 में पुनः सरकार बोलती है, टेररिज्म की बात कहे तो आपको क्यों ऐसा हो रहा है? टेररिज्म के बाद जब हम बोलते हैं आपको क्या तकलीफ हो रहा है? धीरज दिखाइए, बैठिए, सुनिए और काफी चीज है, बैठिए. 2013 में क्या स्थिति सुधरी अध्यक्ष जी? 2013 में, listen to this, some parts of our country have in the recent past witnessed communal incidents. Incidents of left-wing extremist violence have shown a declining trend. The number of deaths in Naxal violence declined from 611 in 2011 to 414 in 2012. Compared with 2011, the number of fatalities in incidents of terrorist violence in 2012 has declined by nearly half. शर्म होनी चाहिए ये लोगों को. अध्यक्ष जी, शर्म होनी चाहिए. ये अपने पीठ तपतपा रहे हैं किस अचीवमेंट पे? That in 2012 the number of deaths has come down to only 400 from 600. This is their achievement. That compared to 2012, compared to 2011, in 2012, the fatalities owing to terrorist attacks has come down by half. ये इनका अचीवमेंट है. 10 साल कांग्रेस पार्टी इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी को इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज कर दिए. This is the certificate
एंड ये मेरा वाक्य नहीं है अध्यक्ष जी, दीज आर ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट्स मेड इन दिस वेरी अगस्त हाउस। अध्यक्ष जी, ये 10 साल उनका था। मैं आता हूं अपने 12 साल पे। आपको दिक्कत हो रहा है ना ये सब सुन के? सुनिए और है। लीडर विल गेट अध्यक्ष जी, रिस्पॉन्ड। 10 साल देश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रसित था। देश के कोने कोने में टेररिस्ट अटैक्स होते थे। महिला बच्चे कोई सुरक्षित नहीं थे। दिस वॉज द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और आज माननीय राष्ट्रपति जी उनके भाषण में ये उल्लेख करते हैं, इंडिया हैज प्रूव्ड दैट power can be used with responsibility and prudence. The world has witnessed the valor and prowess of the Indian Defence Forces during Operation Sindoor. Using its own resources, our country destroyed the base camps of terrorists. My government has sent a strong message that any terrorist attack on India will receive a firm and decisive response. The suspension of India's water treaty is also a part of India's fight against terrorism. ये टेररिज्म के लिए, टेररिज्म के सामने भारत की रिस्पांस था, नरेंद्र मोदी के भारत के रिस्पांस ये। अध्यक्ष जी, the other biggest achievement that we have done is the near elimination of left-wing extremism in this country. राष्ट्रपति जी ने उल्लेख करते हैं, in line with the policy of my government, security forces have acted decisively against Maoist terror. Today, the challenge of Maoist terror has been reduced to just 8 districts from 126 districts. Out of these, only 3 districts remain the most affected. That day is not far when the country will witness complete eradication of Maoist terror. मैं देश के युवाओं के ओर से विशेष रूप में माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। He has single-handedly, decisively eliminated Maoist terrorism in this country. This is one of the biggest achievements of this government. अध्यक्ष जी, कश्मीर का उल्लेख जब हुआ था यूपीए सरकार के 10 साल के भाषणों में, कश्मीर के उल्लेख जब हुआ था वो टेररिज्म के या वायलेंस के साथ ही हुआ था। पहली बार 2014 के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर का उल्लेख डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ और युवाओं के नए शक्ति और विकास के साथ हो रहा। दिस इज द चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, इन द स्पीचेस दैट दिस पार्लियामेंट हैज रिकॉर्डेड। अध्यक्ष जी, देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू दैट द कंट्री मस्ट अंडरस्टैंड। जब इतने सारे अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स होते थे देश में, कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या था टेररिस्ट अटैक्स के विषय पे? मैं बताता हूं आपको क्या था, हैरान हो जाएंगे सुन के। अध्यक्ष जी, our response to terrorist attacks has been clear. When Uri happened, we responded with a surgical strike. When terrorism struck again, we responded with an air strike in Balakot. Under this very government, we responded with Operation Sindoor. We responded to them in the language that the terrorist attack understands. मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इनके बैठने के अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की रिस्पांस थी। कांग्रेस सरकार की रिस्पांस क्या था? कांग्रेस की एक रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, इन 2010 they make a categorical reference towards terrorism in the president's address, and वहां ये उल्लेख करते हैं, our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था? A bill that presumed guilt on the Hindus of the country. A bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists.
शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। टेररिस्ट के डिजाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने 2009-2010 में करने का प्रयास किए थे। अध्यक्ष जी, ये सब नेशनल सिक्योरिटी हो गया। अध्यक्ष जी, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, नक्सलिज्म के बारे में हम चर्चा की। राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण के नजदीक। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति भाषण के उल्लेख हैं। हाँ, वही बोले। अध्यक्ष जी, मैं वही बात कर रहा हूं जो मैं कहा, ये 2010 के राष्ट्रपति अभिभाषण से उल्लेख है। ये उनके स्टेटेड पॉलिसी था। The response to terrorism is not surgical strike. Response to terrorism was a communal violence bill. ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन था। अध्यक्ष जी, हम इकोनॉमी के कंपैरिजन देखे, इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग का कंपैरिजन देखे हैं। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे आता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 2009 में राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है, 2009 में अध्यक्ष जी, अर्ली पैसेज ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रोवाइडिंग फॉर 1/3 रिजर्वेशन टू विमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन पार्लियामेंट इज माय कमिटमेंट। 2009 में 2010 में आएंगे, 2010 में पुनः रिपीट होता है, माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग अर्ली पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। 2012 में पुनः रिपीट होता है, My government has introduced a constitution amendment bill to provide reservation for women. और 2013 में conveniently ये ड्रॉप हो जाता है। 2009, 2010, 2011, 2012 बार बार यही प्रॉमिस दिया जाता है, but promise remains a promise until Narendra Modi comes and promises and delivers on the commitment of women's reservation. ये फर्क है अध्यक्ष जी, यही हालत 1 रैंक 1 पेंशन का भी हुआ था। इनका सिर्फ रिटरिक है, रिफॉर्म नहीं है, प्रॉमिस है, कभी कमिटमेंट में लागू नहीं होता है। अध्यक्ष जी, मैंने कल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया। क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और इथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। इसका एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो। आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress, show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years. Commitment ही नहीं है। Sir, compare this with Narendra Modi. 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं, we will do technology and we will also improve tradition. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार है। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा।
माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, बोलना चाहते हो आप? अध्यक्ष जी, मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए एक के मिनट, पूरे आप बोल स्पीचेस रहे- को आप बोलिए, प्रिंट आउट बोलिए। करके लेकर आ चुका हूं। Sir, तेजस्वी, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज माननीय अध्यक्ष जी अब बैठ जाइए, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। को समझाने का प्रयास उन्होंने किए आप हैं, मत समझाओ, पर सब समझदार हैं। अध्यक्ष जी, मैं तो 10 मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका, मैं उनको देता हूं। 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन, अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए।